سارے لوگ یہاں پر ہیں جن کے نام مجھے نہیں معلوم ہیں، لیکن میں ان تمام لوگوں سے جو لوگ عہدوں پر ہے اور جو لوگ قوم کی خدمت کے اندر مصروف ہے، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بہت سارے غریبوں کا خیال کرتے ہوئے غریبوں کے اندر کچھ روپیے وغیرہ تقسیم کرنا ہے، تو اس پروگرام کے آغاز کے لیے میں سب سے پہلے میں جناب حافظ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق۔ ایک نعت حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ ایک مختصر سے نعت کے چند اشعار کیوں نہیں ہوتے کہ وہ، کیونکہ تلاوت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح کے اندر کچھ نہ کچھ اشعار ہونا بہت ضروری ہے، اور اس مجلس کی رونق بڑھانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں اگر آ گئی تو مجلس کی رونق بھی بڑھ جائے گی الحمدللہ۔ اس سے میری درخواست ہے جناب حافظ محسن صاحب سے کہ وہ نعت کے چند اشعار پیش کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر انداز میں دو بند حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ محبوب خدا رب کے دلدار مدینے میں کیونکہ یہ پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس میں علماء بھی شریک ہے، ان کی موجودگی میں مختصر انداز میں دو بند حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ فخر کون مکہ رحمت دو جہاں، فخر کون مکہ رحمت دو جہاں، سید الانبیاء شافع المذنبی، سید الانبیاء شافع المذنبی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں۔ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا آفری آفری کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ کہ چلے جب نبی کو عمر راستے میں کسی نے کہا روک کر۔ معزز سامعین اور یہاں جتنے سیاسی قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے امام کانگریس کے اور جتنے بھی یہاں پر قائدین ہیں، سب کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں سب یہاں پر اپنی مصروفیتوں کے باوجود تشریف لائے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، دو چار باتیں بتا کر اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہیں، دین آہستہ آہستہ پھیلتا رہا، لوگ اسلام میں آتے رہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اسلام سے پہلے میرے سے ایک بڑا گناہ ہوا، میرے سے ایک غلطی ہوئی۔ پوچھا اللہ کے رسول نے کہ کیا غلطی ہوئی آپ سے؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ میں میری بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا۔ بہت لمبا قصہ ہے، میں آپ کو صرف شارٹ بتا رہا ہوں اس کا۔ جب اس صحابی نے کہا کہ میں ان کو لے کے گیا بچی کو، 2 سال 2.5 سال کی بچی تھی، باہر کھڑا کیا، گڑھا کھودا،
अब जब मैं गड़ा खोद के मिट्टी बाहर निकाल रहा था, मिट्टी मेरी दाढ़ी में लग रही थी और मेरी मासूम बच्ची छोटे छोटे हाथों से मेरी दाढ़ी से मिट्टी झाड़ रही थी। मैं बगैर किसी दुख के, दर्द के, बस बेरहमी से बच्ची को जमीन में दफन कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि भाई के बाद, हिजरत के बाद और इस्लाम के बाद, उससे पहले जो भी गुनाह होते हैं अल्लाह माफ़ कर देते हैं। दोनों भी रो रहे थे। एक वक्त था जहाँ औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, कोई एहतराम नहीं था, कोई उनकी अजमत नहीं थी, कोई उनका मकाम नहीं था। अल्लाह ने अपने रसूल के ज़रिए से, इस्लाम के ज़रिए से औरत को मकाम दिया। लोग कहते हैं कि औरतों को टेढ़ी फसले से बनाया गया। टेढ़ी फसले से अल्लाह ने नहीं बनाया, बल्कि उल्टे तरफ की फसले से बनाया, दामी तरफ की फसले से बनाया। दामी तरफ जो होता है उसमें दिल होता है। औरत माँ होती है तो माँ की मोहब्बत दिल में, बहन होती है तो दिल में, बीवी होती है तो मोहब्बत उसकी दिल में, और अगर बेटी होती है तो उसकी मोहब्बत दिल में। यही जिम्मेदारी एक सहाबी हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के फर्जंद बेटे उनके इत्तिकाफ में थे। उनके एक दोस्त आए, उन्होंने उठे, अपना रुमाल खांदे पे डाले, अपने जूते हाथ में लिए, मस्जिद के बाहर निकल गए। तो आने वाले सहाबी ने कहा, हजरत आप इत्तिकाफ में हैं, आप अपना इत्तिकाफ तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो जवाब ये था कि भाई देखो, किसी मुसलमान की मदद के लिए चलना फिरना, कोशिश करना 10 साल के नफिल इत्तिकाफ से बेहतर है। मैं इत्तिकाफ बाद में कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे जाने से आपका ये मसला हल हो रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे रमजान के मौसम पे ज़कात के पैसे तकसीम करने में, जलसा में शामिल हुआ पूरा मेरा भाइयों को, माताओं को, बहनों को और तमाम लोगों को मेरे तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सबको सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू और रमज़ान मुबारक। एक खुशी की बात है, जो ईशा अहमद बिन कतार में लेके भी अपन का ख्याल कर रहा, इस जरिया अहमद भाई के जरिया ये पैसे तकसीम करने का एक जो काम चल रहा है, मैं आप लोगों के तरफ से और मेरे तरफ से अहमद भाई को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये वक्त तो नहीं होता, परसों जो इलेक्शन हुआ, हमारा पार्टियों को, उम्मीदवारों को आप जिता के आप म्युनिसिपल चेयरमैन हासिल करने का जो मदद करे, आप सब लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं, और वादा ये भी कर रहा हूँ आप सबके साथ हम और म्युनिसिपल चेयरमैन स्वामी, म्युनिसिपल चेयरमैन और हमारा वाइस चेयरमैन दोनों आपके किसी के काम पे आपको काम करने के वायदा मैं उनके तरफ से कर रहा हूँ। और एक बार आप सबको रमजान के मुबारक दे रहा हूँ, और ये भी दुआ करना है जो कतार में रह के ईशा अहमद भाई अपन के ख्याल कर रहा, अहमद भाई के जरिए जो काम हो रहा, वो सब लोगों को आपका अल्लाह का उन लोगों को और दुआ देने के लिए मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। माशाल्लाह, ये हमारे कांग्रेस के इंचार्ज थे जनाब सुनील कुमार साहब, जो इस वक्त में आप लोग उनकी बातों को सुन रहे थे। और मैं कांग्रेस के इंचार्ज साहब, जो यहाँ पर हमारे पास जो काम हो रहा है, बेवाओं में, गरीबों में, यतीमों में जो पैसे वगैरह तकसीम हो रहे हैं, ये हर साल अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं अजमत साहब की जानिब से। और कई रमज़ान मुबारक की खुसूसी रहमतें, खुसूसी बरकतें अता फरमाई। अल्लाह हम सब की जगह इस प्रोग्राम को सजाए हैं, जिस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिए हैं, अल्लाह उन सब के जायज़ मकासद को अल्लाह पूरा फरमाइए। हम सबको भी तेरे दीन की खिदमत के लिए, कौम की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह हम सबको अपने हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाइए। अपने माशरे के अंदर अल्लाह जो मुस्तहिक है, अल्लाह उनके लिए जो प्रोग्राम ये सजाया गया है, अल्लाह हमें भी अपने माशरे, अपने रिश्तेदार, अहल से उनके हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह जिस मकासद के लिए प्रोग्राम सजाया गया है, उनके मकासद के अंदर तकमील अता फरमाइए, उनकी जायज़ मकासद को पूरा फरमाइए, उनके उम्रों में बरकतें अता फरमाइए, सेहत कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा अता फरमाइए।
अल्लाह सबके साथ खैर का मामला फरमाइए। जहाँ जहाँ अल्लाह लोग परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाइए। अल्लाह सुकून नसीब फरमाइए। रमज़ान मुबारक की बरकतों से अल्लाह हमें आपकी तरफ मुतवज्जे होने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह ज़कात सदक़ात की अदायगी का बड़ा मकसद हमारे रोज़ों की कबूलियत है और